Let's proceed ahead with the next GD topic. And GD, as I've already told you, has three components, three parts: introduction part, body part, and conclusion part. Everybody will be given chance to introduce the topic which I will provide you for 2 minutes. You can speak about that topic introduction way. So how to introduce a topic? I'm very sure you people have seen that particular video of mine, how to introduce a topic or how to enter in the GD. So how to start a GD. So that video please watch, and there are a couple of lines which you can start with the topic, and you can give the direction to the discussion. You need to display energy when you start it. Starting energy के साथ होगा. Without energy, if you start, it will lose the charm. Somebody will cut you. So you will start with energy. That means voice level अच्छा होना चाहिए, gesture posture आपके अच्छे होने चाहिए, nodding वगैरह आपको करना चाहिए, आपको अपना आपको visible होना चाहिए जब discussion के लिए आप आए. So that is the introduction part. Second part is discussion among you. उसमें कोई भी starting कर सकता है, तो anybody can pounce upon that. And third is the conclusion, जो कोई भी आदमी कर सकता है. So introduction का चांस सबको है, जिसमें I want to check what your practice is about introduction, और ट्राई करना एक्चुअल सिचुएशन में इंट्रोड्यूस आप ही लोग करें. और उसके बाद बॉडी का पार्ट रहेगा. हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं. अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो हिंदी में बोलिए, और हिंदी के अंदर आप इंग्लिश के वर्ड जैसे मैं यूज कर रहा हूं अभी, तो आप कर सकते हैं. हिंदी का मतलब प्योर हिंदी नहीं होता, आप इंग्लिश हिंदी मिक्स कर सकते हो. व्हाट मैटर्स इज कि आप कितना अच्छा बात कर रहे हैं, कितना अच्छा टॉपिक के आसपास रह रहे हो आप, और आपने टॉपिक को किस तरीके से समझा है और उसको आप बोल रहे हैं. अपनी लाइफ के एग्जांपल जरूर दो, लोगों से क्वेश्चन जरूर पूछो, कहीं पे किसी बड़े आदमी का कोट करना है तो कर सकते हो. तो ये चीजें आपके जो कन्विंसिंग पावर है उसको बढ़ाती हैं. दैट बेसिकली एड्स टू योर कंटेंट. सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, टॉपिक आपको देता हूँ अभी, एंड आई गिव यू 2 minutes आफ्टर दैट, एंड देन वी स्टार्ट द जीडी. सो प्लीज राइट द नेम ऑफ द टॉपिक इज collapse of education is collapse of a nation. Collapse of education is collapse of a nation. Collapse of education is the collapse of a nation. Okay, so I think we can start with Amar now. Yes, sir. So, good morning to all of you. So, today's topic is collapse of education is to collapse of a nation. So, before we'll get into the topic, generally every time when we talk about our success, our improvement, everything, the social status of our life, how we can एक अपनी अलग पहचान जैसे बनाते हैं in our society. So for that status to be justified or to be a, I think it's the most basic parameter that everybody will judge us in a society. That means in terms of our money, what we have, and the main thing is the education. How our education background. That means how I have educated, what I have done in my life. So of course,
in terms of society. But when we'll talk about our nation building, so the first thing comes will be the education system, the learning, the experiences which our youngsters and youth, we the youth are developing in our day-to-day life. That means starting from our nursery, primary schools, that to the main school, that to high schools, that after up to graduation also. So of course, in order, whenever we'll talk about a collapse of any nation, that means to collapse a nation, that means you can collapse a nation by collapsing its education system. If our education system day by day, if will not improving, if will not see, or if will not concerned about this topic, we have to improve the education systems. That may be to make our education system more flexibility or something like that. Some improvement should be also there in education system. So for that, I would like to open our house for discussion regarding further about this and give their valuable points, so that our discussion should be more fruitful and more topical discussion. Thank you. Yes, Satyajit. Good morning, friends. I have taken the opportunity to introduce the discussion. Topic given to us is collapsing of the education system, the collapsing of the nation. This is very relevant topic. In my opinion, collapsing of the education, I fully agree with the collapsing of the education is collapsing of नेशन. कोई भी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हम उस पर परमाणु बम या कोई अलग एटम बम गिरा दें. यदि हम उस कंट्री का इंटरनल डेवलपमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे तो कंट्री कोलैप्स कर देता है. एज एग्जांपल, एज ए इंजीनियर यदि कोई बिल्डिंग बनाता है और वो कोलैप्स कर जाता है जिसमें हमारा नुकसान होता है. इफ वी हैव नॉट, यदि हम लोग के पास यदि गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं रहेगा तो इनफैक्ट एज एग्जांपल इफ डॉक्टर यदि हमारे पास कोई हमारे पास यदि गुड एजुकेशन नहीं रहेगा, जैसे हमारा और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहेगा, एज एग्जांपल इन पेशेंट के हाथ में ही, मतलब डॉक्टर के हाथ में पेशेंट डाई हो जा रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि यदि गुड एजुकेशन नहीं रहेगा तो हमारा देश का ही नुकसान होगा. So in our discussion we have to learn why the education system is lacked and what reason, and हम इसको improve करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग discussion करेंगे. Now I invite all of you to take participation in the discussion. Now I go to Bhupendra. Yes. Good morning, friends. My name is Bhupendra and I'm glad to start the discussion. Let me introduce the topic. Friends, the topic given to us is collapse of education and collapse of a nation. So, in my opinion, this topic is topic of importance in our country's growth. So, education is something which, first of all, what is education? Education is something you are acquiring knowledge and skills for the betterment of life. And with education, you get to know what is right, what is wrong, what to choose, what not to choose. So education is basically everything which is important in growth of one's life. And if an individual grows, he or she contributes in the country's growth, state's growth, and nation's growth. After all. So if there won't be good education, there won't be a good nation. And because after all, with education, our citizens know their rights. They know which government to choose, which to not choose. And on the other hand, they are the ones who make the country. So from basic education to higher education, education is very must, and at least basic education must be there. So if there won't be any education, there won't be a growth of the nation. With all that, let us discuss on this, that why the education system in India collapsing, what are bad things which are collapsing, and what we can do about this, and how this can improve our nation's growth. So with that, I invite all of you to participate in the discussion. Let's start. Okay. Now we go to Varun Avasthi. Good morning, friends. My name is Varun Avasthi, and I'm glad to be given the opportunity to introduce today's discussion. The topic given to us today is collapse of education is collapse of a nation. In my opinion, this is a very important topic of current relevance, and I really like how this topic is phrased because it shows us how important education is in the development of a nation.
that if we destroy the education, we can destroy entire nation. And education doesn't necessarily mean that we have to study the topics. Yes, we do get examples from history and everything, but education builds thinking capacity. It increases our problem solving skills. And that we see now, Mangalyaan and many of the missions like ISRO, DRDO, they require our Indian engineers and Indian scientists. And if we rely on that, then we won't have to rely on other countries. Like, we have Tejas of our own, and we had Mangalyaan of our own, which was very much cheaper as compared to the space exploration projects of companies like SpaceX and everything, which had scientists all over from all over the world. So I believe this is a very relevant topic, and I open the house for discussion, and I hope we reach consensus. Thank you. Okay, now we go to Pavan. So, good morning, everyone. My name is Pawan Nathani, and I am glad to start today's group discussion. The topic for today's group discussion is collapse of education is collapse of a nation. This is very interesting topic, and in my opinion, this topic is answer of questions like why is many African countries, despite having plenty of natural resources, developing at a very slow pace, and some of the countries like Japan, despite being center of natural disaster, is one of the leading economy. The main hope of the nation lies in the proper education of its youth. And friends, education is not only the learning from as in school textbook, it also includes moral and ethics. Because what I think there is a difference between being a literate and being educated. This topic also put a question in front of us. Is our country's education system is in right direction? And if not, are we collapsing as a nation and a country? So I would like to invite all of you to discuss on this interesting topic. Okay, Humayun. Yes, sir. Hello, everyone. I am Humayun Sheikh. I am very much glad to take this opportunity to start this GD. The topic which was given in today's GD is collapse of education is collapse of nation. So I fully agree with this topic because education is grassroots of developing a nation. So that's why I think that there is no need of war or arms to destroy a nation. So we have in India has very good population, but that's why we have very good youth power. But as education is not good in India, that's why we are not utilize we are unable to utilize this youth power to develop our nation. And that's why we should think why education is collapsing and what can be the possible solution. So we should move in today's day in this way. So now I like to. Now I open the house and Okay, so now I go to Randhir Kumar. Yes, sir. So thank you everyone for giving me an opportunity to discuss the topics by a famous quote by the Sir Nelson Mandela. The collapse of nation is the collapse of education system is the collapse of nation. In this topic, we will discuss about the effects of collapse of education system, a scope of improvement. As we all know, the education is one of the fundamental rights of every citizen of the country. So, and one more thing is that education is the answer to the every questions we will deal in present and the future. So, very vast topic, a very good topic to initiate a very good topic to discuss among all the things and to get the conclusion. So I would like to. So I'm opening the house and inviting my friends to discuss to participate in this discussion and get the fruitful results after the discussion. Thank you. Okay, Mayank. Okay. Hello, everyone. So, thank you for giving me this opportunity to introduce the topic. The topic today is collapse of education is the collapse of nation. So, we can discuss upon what is the real situation happening in our country and what could be the possible reasons to it. And we could also talk about various solutions. Main problem which I see, which have not been discussed till now, is the syllabus that is being taught to us is becoming a little more obsolete. We need to restructure the syllabus so that it becomes very relevant to the today's problem.
Also, we need to see that education is very important, because without it the country will collapse. For example, we can take the example of North Korea. It's a country led by a emperor, Kim Jong-un. So he is for decades he has been educating its people to believe in himself, and everything is very strict about educating certain things only and certain ideologies. So the people have become like that. So we can see that as a negative example कि एजुकेशन का क्या बुरा असर हो सकता है अगर हम लोगों ने उसको ठीक से किया नहीं तो. So yeah, I open this house for further discussions. We have a lot more points to discuss, or I hope that we reach a consensus. Okay, now Rohitash. Good morning, friends. My name is Rohitas. I'm glad that I get opportunity to start the group discussion. Friends, today our topic is collapse of education is collapse of the nation. Friends, this is very important and current relevant topic, because education is very important in the development of the nation, and we discuss today about the impact of the education on the nation. Friends, today our education system is going down, and in the government schools and also numbers are going down. And if in the country there is no education, then no growth, no development, and no culture. So I invite all of you to participate in the group discussion. Thank you. Okay, now Deepti. Good morning, everyone. I am Deepti Gupta. I am very interested to discuss this topic, that is collapse of education, collapse of nation. The topic is very important topic to discuss. एजुकेशन किसी भी नेशन के लिए एक बैकबोन की तरह काम करती है, एंड होता क्या है कि विद मतलब एजुकेशन की हेल्प से ही हम नॉलेज, लर्निंग स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग की पावर, मोरल वैल्यूज, ये सारा कुछ हम एजुकेशन की हेल्प से ही सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप. और महात्मा गांधी ने भी क्या कहा है कि इफ वी वांट पीस, प्रॉस्पेरिटी इन अवर लाइफ, देन वी शुड स्टार्ट एजुकेटिंग अवर चिल्ड्रन. एंड जो टॉपिक है कोलैप्स ऑफ एजुकेशन इज कोलैप्स ऑफ नेशन. किसी भी नेशन को अगर हमें डिस्ट्रॉय करना है तो हम मिसाइल्स और एटॉमिक बॉम्ब कोई यूज करके डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम एजुकेशन की क्वालिटी कोई डिग्रेड कर दे, कम कर दें, तो हम उससे भी कोई भी नेशन कोलैप्स कर सकता है. नाउ आई ओपन ऑल ऑफ. अंकित. Good morning, friends. My name is Ankit Singh, and I would like to start the discussion. Thank you. The topic for today's discussion is a collapse of education is a collapse of the nation. Somewhat we can agree that it is like a universal fact. And in my belief, I think education is the root of every aspect used to measure the growth, development, etc. of a nation. And I don't believe anyone here would disagree with the given topic, but still I would like to invite all of my friends to participate in the further discussion. Thank you. Okay. Okay, now I think everybody has introduced the topic. Now, please unmute each one of you, and now we are going for the second round, which is the round of discussion among all of us. Let me tell you the rules in this particular section. You need to participate, that is number one. Number two, you need to stick around the topic. Number three, you need to listen to others. Number four, you need to talk relevant. And these are the parameters on with the basis of which you will be gauged, you will be given the marks. So no unnecessary interventions, no unnecessary irrelevant topics. You are not to take the discussion in wrong direction. So just stick around the topic, cooperate with others, listen to others, and then we go for the last section, which is the conclusion, in which one of you can conclude on behalf of the entire group about this particular topic. So now I open the house for discussion. Please go ahead. Thank you, sir. Hello everyone. मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा जो कोलैप्स ऑफ एजुकेशन हुआ है, जो कोलैप्स एजुकेशन जिस पे हम लोगों ने सबने
इंट्रोडक्शन में ही सबने अग्री किया है कि ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक है। सो द मेन थिंग यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस कि ये कोलैप्स हो क्यों रहा है हमारे कंट्री में और उसका क्या क्या सोल्यूशंस हो सकता है। तो जो मेरे दिमाग में 2-3 आया है वो मैं तुरंत बता देता हूँ विदाउट टेकिंग इन टाइम, कि द क्वालिटी ऑफ टीचर्स जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो रहा है वो धीरे धीरे डिग्रेड होते जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल्स है हमारे वो काफी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और ये इसमें रिस्पॉन्सिबल है हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस इटसेल्फ। बहुत सारा ऐसा डाइसी प्रोसेस है हमारा जो रिक्रूटमेंट का है, बहुत सारे ऐसा घोटाले सुनने को मिलता है रिक्रूटमेंट के समय, जिससे क्वालिटी बहुत डिग्रेड होती है और टीचर्स को खुद नहीं आता है। ऐसा कई बार गवर्नमेंट स्कूल्स में देखा गया है। और इसके अलावा मैं ये गवर्नमेंट स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ऐसा बोल सकता हूँ कि इसके वजह से भी क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जी है जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स और वो जो लैब्स होते हैं वो स्टूडेंट्स का क्वालिटी को इम्प्रूव करता है एजुकेशन में। सो आप लोगों का क्या कहना है इस पे? हाँ, सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि रिक्रूटमेंट की बात बोल रहे हैं, जैसे आप रिक्रूटमेंट की बात बोल रहे हैं, जैसे आप रिक्रूटमेंट की बात बोल रहे हैं टीचर्स के लिए, तो एक करके बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, अमर आप बोलिए, अमर उसके बाद हाँ, भूपेंद्र आप बोल लीजिएगा। ठीक है मयंक जी, जैसे आप बोले लेस रिक्रूटमेंट ऑफ, जैसे कि अवेबिलिटी ऑफ टीचर्स आज के जमाने में क्या हो रहा है, आज के नहीं, सिंस ये एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक है कोलैप्स ऑफ एजुकेशन के बारे में कि एक जेन्युइनली बहुत कंसर्न टॉपिक है, लेकिन गवर्नमेंट हमारा लास्ट 3-4 इयर्स हो गया इस चीज पे ध्यान ही नहीं किसी का जा रहा है कि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम जैसे बंद हो रहा है। जैसे अराउंड 2018-19 एक साल के अंदर 51,000 गवर्नमेंट स्कूल्स और उस रिलेटेड सारी चीजें बंद हो गई, पूरा शटडाउन हो गई। कोविड टाइम में तो छोड़ो, वो तो बहुत से शटडाउन हुए, लेकिन मेन जब इंडिया हम लोग का नेशन जब रनिंग फेज में था, डेवलपिंग कर रहा था, वो काउंट हो रहा था, तब 18-19 में अराउंड 50-51,000 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं। तो उस पर जैसे गवर्नमेंट का कभी कंसर्न नहीं हो रहा है चीजों को, और इस चीज को अगर कंसर्न कर रहा है गवर्नमेंट तो उसमें 2-3 चीजों पे हमेशा हमको काम जैसे कि उनको सोचना चाहिए था। जैसे कि सबसे पहला है अवेबिलिटी ऑफ टीचर्स, क्योंकि हम लोग यूथ है, हम लोग का सबसे ज्यादा वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा यूथ अगर कहीं यूटिलाइज हो सकता है, जिसका स्कोप ज्यादा है, वो हम लोग का नेशन ही है इंडिया। तो इसमें अगर हम लोग यूथ को अगर प्रॉपर डायरेक्शन प्रॉपर चीज देने के लिए हमको अवेबिलिटी ऑफ टीचर सबसे पहले चाहिए, तब जाके हम लोग को यूथ को एक डायरेक्शन मिला गया कि कैसे हम लोग आगे बढ़े, कैसे हम लोग फॉरवर्ड करें, कैसे हम लोग नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सके। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है, जब भी हम लोग रिक्रूटमेंट की बात करें, जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गया, फिर उसके बाद पोस्ट रिक्रूटमेंट हम लोग सोच नहीं रहे कि ज्वाइनिंग हुआ कि नहीं बच्चे, जैसे कि एक ऑडिट, प्रॉपर ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट में जैसे सरप्राइज चेकिंग में आ जाते हैं, तो वो सब चीजें भी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर बार हम लोग गवर्नमेंट कोई चीजें कोई स्टेप्स ले लेता है और उस पर वो फंडिंग भी कर लेता है, लेकिन आगे वो ग्राउंड लेवल तक जाता है कि नहीं, वो हमारे पास अवेलेबल हो पा रहा है नहीं, उसको ऑडिट फेज में भी ये मेरे हिसाब से बिल्कुल। हमारे एक बात एक ये भी है ना कि मतलब हमारे देश में गवर्नमेंट स्कूल तो घट रहा है और प्राइवेट स्कूल बढ़ रही है। एक रीजन ये भी हो सकता है। प्राइवेट स्कूल में बढ़ने का कारण ये होता है कि हमारे जो अर्बन एरिया के लोग होते हैं जो कि प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं होने के कारण एक लैक ऑफ एजुकेशन बच्चों में आ जाती है। जैसे ये देखा जाता है कि जो मतलब हाई अच्छे स्कूल से पढ़ के आए बच्चे, उसमें कम्युनिकेशन और बहुत सारे स्किल्स ज्यादा रहते हैं, लेकिन टीचर रिक्रूट हो रहा है तो टीचर के रिक्रूट होने के बाद हम लोग स्टूडेंट को फीडबैक नहीं लेते गवर्नमेंट से। अगर कोई सर्वे करते कि टीचर अच्छे पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, तो अगर करते तो टीचर का क्वालिटी भी अच्छा हो जाता। तो ये प्रॉब्लम है कि टीचर मतलब हम लोग को चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाना, बट गवर्नमेंट जॉब लेना मुझे हम लोग को अच्छा लगता है। तो अगर कोई हम लोग कोई गवर्नमेंट स्कूल में टीचर होते हैं तो हमको लगता है कि हमको पढ़ाना नहीं है, मुझे कोई काम नहीं है। तो अगर कोई फीडबैक सिस्टम होता है गवर्नमेंट, इसके अलावा भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक प्रॉब्लम है, जैसे हमारे स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम नहीं है, डिग्री बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। तो उसकी वजह से ज्यादातर लोग एजुकेशन ही गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कर रहे हैं, 90% स्टूडेंट्स। तो हमें इस एजुकेशन सिस्टम को कन्वर्ट करना होगा ताकि जॉब्स के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए देखो जो कॉर्पोरेट्स में है, हमें कॉलेज में जो सिखाया जाता है वो दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो हमें करना है। सो रादर देन कि हमें जो एजुकेशन दी जा रही है वो ऐसे दी जानी चाहिए कि वो कॉर्पोरेट में काम आए, जैसे कि प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड हो। तो हार्वर्ड स्टैनफोर्ड में क्या होता है कि पहले वहाँ पे केस स्टडीज होती हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पे उनका 80% के करीब काम उन पे होता है। तो व्हाट आवर कंट्री शुड डू इज
engage more and more in बिल्कुल। case studies So- or things so like every- मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, Yeah, इसी बात से क्या इसी में होगा मैं ना, जर्मनी का एग्जांपल देना चाहूंगा कि जर्मनी में 3 स्टेज बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। तो So उसमें क्या है कि everyone बोलते हैं, So तो everyone 3 here स्टेज is, एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने 3 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को बांट देते हैं। जिन्हें स्किल सीखनी है वो स्किल्स के लिए जा सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स उसमें जा सकते हैं, और जिन्हें मतलब जॉब्स के लिए या कुछ साइंटिस्ट बनना है तो वो अलग से रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं। तो वहाँ पे क्लास के बाद भी डिवीजन सकता है ना यहाँ पे रोहितास जी, इसका जो सोल्यूशन हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे शुरू से ही बच्चों को ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज साथ में ही सिखाया जाए, जो कि क्लास शुरू से ही 5th 6th से ही प्ले स्कूल पे भी होता है, बट ऐसे 5th 6th क्लास में जैसे थोड़ा बहुत कारपेंट्री सिखा दिया, थोड़ा स्किल सिखा दिया, थोड़ा कोडिंग सिखा दिया, अलग अलग। ये हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है 2019 में। हाँ, बस ये implementation अगर वो अच्छे से करें तो इम्प्लीमेंटेशन पे it's स्टेज पे नहीं आ पाया है, बट आइडिया इटसेल्फ इज वेरी यूनिक है ना। इंडिया में ऐसा चीज इंट्रोड्यूस हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी कि पॉइंट कि गवर्नमेंट जब भी जैसे कि कोलैब एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर रही है, गवर्नमेंट स्टेप्स अच्छे से ले रही है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच ही नहीं पा रही है, वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं। हमारे ग्राउंड लेवल पे पहुंचने के लिए उसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही कुछ कर नहीं सकती है, उसके लिए हम लोग और अपने मतलब ग्राउंड लेवल पे मतलब हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, मतलब एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, उस सबको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सिर्फ चाहे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर दे उस चीज को तो वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए ये अनफेयर है कि अपन गवर्नमेंट हम लोग अब किसी और टॉपिक, किसी और प्रॉब्लम पे डिस्कस कर सकते हैं। करेंगे कि वो कोई अच्छी मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जैसे इसकी क्वालिटी बढ़ती है, तो जैसे हम दिल्ली का एग्जांपल लें तो वहाँ पे स्कूल्स में एडमिशन काफी ज्यादा बढ़े हैं, क्योंकि वहाँ की स्कूल्स की क्वालिटी पिछले कुछ सालों में बढ़िया हुई है। जिसकी वजह से एजुकेशन कमजोर तबके के लोगों के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको फॉरेन भेज के ट्रेन किया गया है, जो रिक्रूटमेंट किया गया है, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बहुत ज्यादा प्रोफेशनली इन्होंने निभाया है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अपने आप वो स्कूल का इम्प्रूवमेंट हो जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया है। नहीं, हम लोग तो ये इस चीज पे बहुत अच्छा ध्यान दिए। हम लोग विलेज एरिया पे ध्यान नहीं दे रहे कि विलेज एरिया पे जो स्टूडेंट रहता है वहां पर तो मतलब स्टूडेंट नहीं आता है, क्योंकि उन लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा है। मतलब पहले उन लोगों का खाना एक टाइम का खाना ही अफोर्ड नहीं कर रहा है, तो वो किसका लेगा? तो इसके लिए मिड डे मील जो स्कीम हुआ है वो उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो अगर मिड डे मील स्कीम अच्छा होता तो ग्राउंड लेवल पे पवन आप बोलिए, पवन आप थोड़ा बोल लीजिए, आपने बोला नहीं अभी, पवन कुछ बोला नहीं। पवन जी कंटिन्यू। जो ग्राउंड लेवल पे हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को, उसका मेन रीजन है कि हम कह तो रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन सब तक पहुंचाने, लेकिन ये सबको रियलिटी पता है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टी नहीं है। तो इसका पॉसिबल सॉल्यूशन ये हो सकता है कि कुछ लोग जो कि नॉलेजेबल है उनको एक प्रॉपर सोर्स जैसे एनपीटीएल होता है, तो एक ग्राउंड लेवल पे हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज तक नॉलेज पहुंचा सकते हैं। उसके लिए हमें ना ज्यादा फैकल्टीज की जरूरत पड़ेगी, तो फैकल्टी जिनको नॉलेज है वो एक प्रॉपर ऑनलाइन सोर्स की मदद से एनपीटीएल या पवन जी अगर ऑनलाइन की बात करें ना पवन जी, नेट का भी बड़ा दिक्कत है। पवन जी आपको ये चीज पता है, अगर वो हो सकता तो कोविड में ये इजी है ज्यादा पहुंचाना लोगों तक, बजाय हर फैकल्टी को एजुकेट करना, ये ज्यादा इजी कि गाँव में नेट पहुंचाना। जैसे हम देख रहे हैं कि कंट्री कितने बढ़िया तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोग्रेस कर रही है, तो ये मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं होगा। एक इसमें एक बीच का रास्ता ये निकाला जा सकता है कि एक हाइब्रिड मोड में यूज कर सकते हैं हम लोग, एक ऑनलाइन और ऑफलाइन को मिक्स करके यूज किया जा सकता है। जैसे कि जहाँ पे ऑनलाइन जहाँ पे पॉसिबल है वो किया जाए, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज जितना भी वो ऑफलाइन मोड में किया जाए, तो इससे दोनों का एक अपना अपना जो फायदा होता है वो एक स्टूडेंट को मिलेगा, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा। रूरल और बेसिक एजुकेशन की हायर एजुकेशन में भी एक होल डिफरेंट सिनेरियो इज गोइंग ऑन, क्योंकि हायर एजुकेशन में क्या चल रहा है, प्राइवेट कॉलेजेस बढ़ते जा रहे हैं एंड वो इंजीनियर्स पैदा कर रहे हैं, लेकिन अब जॉब आगे है नहीं क्योंकि उनमें स्किल्स नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जो फैकल्टीज है वो खुद ही एजुकेटेड नहीं है, वो चीफ फैकल्टी हायर कर रहे हैं, वो एजुकेशन दे नहीं पा रहे। राइट एग्जैक्टली, सबसे बड़ा रीजन ये बहुत अच्छा फैक्ट आई वांट टू ऐड, 10 to 20% ऑफ स्टूडेंट्स दैट प्रोड्यूसिंग कॉलेजेस आर इनसफिशिएंट इन स्किल्स। एक प्रॉब्लम हमने डिस्कस नहीं की है, जो प्राइमरी लेवल के स्कूल्स होते हैं विलेज एरिया में, तो वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक 200-250 होते हैं, बट टीचर्स वहाँ पे 2-3-4 बस इससे ज्यादा नहीं होते एक स्कूल में। बट ये टॉपिक के लिए
दीप्ति जी, ये टॉपिक के लिए मैं सिंपली कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि उड़ीसा में ये चीज हो ही रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स उड़ीसा में बहुत ज्यादा है, जहाँ पर आप अभी भी जाके हम लोग उड़ीसा के कभी देखेंगे तो वहाँ टीचर्स 1-2 ही होती है, वो बच्चे भी अपना खेलते रहते हैं। टीचर इज टू स्टूडेंट रेशियो बहुत खराब है। और बहुत कम है। यूपी में 2018 से 20 के बीच में 26,000 स्कूल्स बंद हुए और एमपी में 22,000 18 से 20 के बीच में। तो ये दर्शा रहा है कि टीचर्स की काफी ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से स्कूल्स को बंद किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने बजट भी कम कर रखा है, क्योंकि अगर बजट होगा तभी तो टीचर्स को इंक्लूड कर पाएंगे। और जो मतलब जो कोई भी स्टूडेंट है वो एफेक्ट हो रहा है, बट कॉलेजेस में भी प्रोफेसर्स की कमी हो रही है। जैसे आईआईटीज में बहुत सारा न्यूज में आता रहता है, कभी इस स्ट्रीम का बहुत सारा फैकल्टी अभी नहीं है, मतलब वहाँ पे भी एक एजुकेशन ये बोल सकते हैं कि हायर एजुकेशन में भी इसका बहुत इफेक्ट देखने को मिला है, जो क्वालिटी में। जैसे भूपेंद्र जी ने अभी ने बताया कि Mr. Mayank, can I give some point? Mr. Mayank, can I give some point? हाँ बिल्कुल। Actually, yeah, please, why not? So everyone here is agree with the fact that we are having the poor education system. So I would like to highlight some points so that we can improve the quality education in our country. So here what we are facing, that we are having some overcrowding in the schools, or we are having the less number of people in less number of students in the school. So what we can ensure that we are having the good number of education schools, and we are having the good number of students in that school, so that we can run very prosperity in that way. देखिए रणधीर जी देखिए, इसमें एक अच्छा भी ये भी पॉइंट है कि हम लोग चीज भूले कि ट्राइबल जैसे जगह में, जैसे बोला ट्राइबल लोकेशन में दिक्कत होती है कि टीचर इज टू स्टूडेंट से कम है, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे भी है कि वहाँ टीचर तो अवेलेबल है लेकिन बच्चे नहीं आ रहे। क्यों हो जाता है। एक पॉइंट ऐसा है, देखिए एक पॉइंट ऐसा है कि ट्राइबल, जैसे मैं बात किया, जैसे ट्राइबल जगह पर भी बहुत सारे जैसे स्कूल्स है जहाँ टीचर इज टू स्टूडेंट रेशियो बहुत खराब है, लेकिन कुछ स्कूल्स उसमें से ऐसे भी है जिनके टीचर्स अच्छे हैं, वो आते हैं लेकिन बच्चे ही नहीं आते हैं स्कूल, जैसे ट्राइबल फैमिली से, क्योंकि वहाँ अवेयरनेस नहीं है, वहाँ एजुकेशन का अवेयरनेस नहीं होना। अमर, मैं इस पे एक बात बताना चाहता था सबको कि इसका एक ये भी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे गर्ल स्टूडेंट को ऐसे प्रेफर नहीं करते एजुकेशन देना, जो हमारा एक ड्रॉबैक रहा है सोसाइटी का। एक गर्ल को मोटिवेट करना कि हाँ आप भी जाओ एजुकेशन इक्वल लो, वो ट्राइबल एरिया रूरल एरियाज में कम देखने को मिला गया है। इसके वजह से कई बार पार्टिसिपेशन कम होता है। ट्राइबल चीज का, ट्राइबल्स में ऐसा नहीं है कि वो गर्ल्स को प्रिफर नहीं करते, बॉयज को दे रहे, वहाँ कोई भी नहीं आता, क्योंकि वो ऐसे ही सोचते हैं कि बच्चे होकर घर का काम करें, बच्चा के पत्ता जैसे जंगल में जाकर पत्ता लेके आए या पेड़ काट के लेके आए, उनका घर रूरल एरिया में कम स्टूडेंट स्कूल जाना पसंद करते हैं और उनके पेरेंट्स भी इसके प्रति एक्टिव नहीं है। उनको तो खाना नहीं मिलता है ना, तो देखना खाना पहले चाहिए ना, एजुकेशन के पहले खाना चाहिए, तो उन लोगों का अगर खाना ही नहीं मिलेगा तो कैसे मिल जाता है। इसलिए वो लोग, इसीलिए गवर्नमेंट ने बनाया मिड डे मील वो ठीक से पहुंच नहीं रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। मध्याह्न भोजन के बारे में एक फैक्ट को जो हम इग्नोर नहीं कर सकते वो है कि हमें एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत है। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है जो हमारा, उसमें रिफॉर्म है। हमारी कंट्रीज में ऐसा है कि साइंस को सबसे टॉप पे देखा जाता है, आर्ट्स को ऐसा देखा जाता है कि जिसके नंबर्स नहीं आ रहे। ये काफी डीप रूटेड चीजें हैं जो हमें करनी है, सुधारनी है। तो ये चीजें जो हमें भूलनी नहीं चाहिए कि जैसे आर्ट्स को हम एकदम वो लेते हैं कि जिसके कम नंबर आ रहे हैं वो आर्ट्स देगा, तो एक तरीका क्लास हो जाता है। आज का मतलब लिटरेसी और एजुकेशन के बीच का डिफरेंस यही है, लोग एजुकेशन को बराबर कर लेते हैं लिटरेसी, मतलब अगर आपके पास डिग्री है तो आप एजुकेटेड हैं, ये बात नहीं। एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज नहीं देगी, जो आर्ट्स वाले हैं एंड ऑल दोस हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं देगी, जबकि इंजीनियर्स के लिए जॉब पहले इतनी क्रिएट हुई कि लोगों को लगा कि इधर शिफ्ट हो जाते हैं एंड वो माइंडसेट चेंज हो गया। जब तो कंट्री में यही है ना अवेयरनेस। आई एग्री विद उपेंद्र, बट आई वांट टू ऐड सम पॉइंट। देख हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ किताबें पढ़ाने पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि कल्चर के बारे में कुछ भी स्टडी नहीं करवाया जाता, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है कि आर्ट, साइंस एंड दोस ऑल थिंग्स एंड अदर रिलीजियस थिंग्स एंड बट यहाँ से एक बट अभी ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी है, दे मेक इट कि somehow कि लोग इतना ना पढ़े, because after all they want votes on all that, so they want to manipulate them.
ये हो सकता है। ये साइंस कॉमर्स मैथ्स में यहाँ पे थोड़ा डिसएग्री करना चाहूंगा मैं यहाँ पे थोड़ा ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कहना है कि आप अगर एक साइंस का स्टूडेंट लेते हो तो आप कॉमर्स के भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो और आर्ट्स के भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो, कंबाइंड कोर्स आप ले सकते हो, या फिर कॉलेज में भी आप देखोगे तो आप 1 साल 2 साल अगर 3 साल भी पढ़ोगे तो आपको एक डिप्लोमा डिग्री मिल जाएगा अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो। तो एक फ्लेक्सिबल टाइप का एजुकेशन सिस्टम बनाने की कोशिश किया गया मैं एग्री करता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन में पर इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और इसे कुछ बहुत फास्ट से करने की जरूरत है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं एजुकेशन पॉलिसी क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है बहुत जगह में, तो फिर से पहले का वही चल रहा है कि ये साइंस ले सकते हो तो आज तक कोई साधन नहीं लगे, तो ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमको पूरा टीचर्स को उस तरह से रिफॉर्म करना पड़ेगा, पूरा एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा, टीचर एंड प्रोफेसर को उस हिसाब से ट्रेनिंग देना पड़ेगा, या और मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी करना पड़ेगा। यदि बच्चा एक डिग्री से दूसरे डिग्री में शिफ्ट करता है तो उसको किस हिसाब से उसका एजुकेशन को आगे प्रोवाइड किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, वो पहले क्या सीख रखा है, ये सारी चीज मैटर करता है। उसके लिए थोड़ा सॉल्यूशंस के ऊपर थोड़ा सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या सॉल्यूशंस हो सकता है, आप लोग क्या बताओगे? सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन में अगर सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूंगा, सॉल्यूशन में अगर मयंक जी सबसे पहला पॉइंट मैं ये बोलूंगा, जो ऑडिट हो रहा है, देखिए ऑडिट तो हम लोग कोई जनरल जैसे हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, वो तो गवर्नमेंट ऑफिसर से होगा, उनका प्लानिंग के चलते जैसे होता है सर। आजकल जैसे आईएएस ऑफिसर लोग क्या कर रहे हैं, जैसे एक्सीडेंटल में सडनली जाके ऑडिट डाल दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पे सीक्रेटली जाके ऑडिट डाल के आ रहे हैं। तो ये एक सिस्टम एक होना चाहिए ताकि एक डर बना रहे, एक फियर नहीं बोलूंगा, एक अवेयरनेस हर जगह बना रहे कि अरे हम लोग अपना काम अच्छे से करते हैं, पता चला कल आके वो हम लोग को मतलब आके ऑडिट डाल दिया डिपार्टमेंट में और पता चला कोई दिक्कत हो रहा है, या कोई नेता या कोई गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके तुरंत बच्चों को, जैसे कि अब होता क्या है, एक दिन पहले अगर किसी को पता चल भी जाता है कि अरे कल ऑडिट पढ़ने वाला, तो कहीं से बच्चों को उठा के लाके खाली बिठा देते हैं स्कूल के अंदर। अब वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनको फॉलो अप भी थोड़ा ग्राउंड लेवल तक होना चाहिए, जैसे कि बच्चों को खड़ा करके 2-3 चीजें पूछ लिए कि आपको क्या पढ़ा है, क्या पढ़ रहे हो, तो ये एक चीज हो सकता है। मैं एक चीज हो सकता है ना यहाँ पे कि स्टूडेंट का फीडबैक इटसेल्फ को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सके तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। एक स्टूडेंट का जेन्युइन फीडबैक रहे रादर देन अगर कोई हायर ऑफिशियल ऑडिट करे, उससे ज्यादा अच्छा होगा कि स्टूडेंट से ही पूछा जाए एट द एंड ऑफ हर 3 महीने में, और उसका एक वैल्यू रहे, मतलब सामने में फॉर्म भरवा के उसके बाद करिए जाए। फीडबैक सिस्टम यू आर मेंशनिंग राइट हियर, लाइक वी शुड मेक अ लाइक credit based system for teachers teaching in the government schools, like how many students he have taught and their scores and other things, and teachers should be portfolio must be generated where people can see that what he has done, so he will be motivated। अच्छा आपका प्रॉपर हम लोग का टॉपिक ये था ना, मतलब कि ये एजुकेशन सिस्टम नेशन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। हम लोग अभी तक सिर्फ एजुकेशन के बारे में कर रहे हैं, और ये एजुकेशन किस तरह से हम लोग का नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है इसके बारे में हम लोग अभी तक डिस्कस नहीं किया। वही कर रहे हैं ना। देखिए जब भी नेशन की हम लोग बोले ना, जब भी मैं स्टार्टिंग से बोला नेशन बिल्डिंग की, जब भी हम लोग बात कर रहे हैं तो हम डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं नेशन को, और वो इनडायरेक्टली एजुकेशन सिस्टम से ही हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग अपना ग्रोथ, अपना डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं एजुकेशन सिस्टम से। तो अगर इसकी कैसे कोलैप्स कैसे होता है, अगर नेशन कोलैप्स कैसे होगा, जैसे 2-3 पॉइंट मैं बोलता हूँ। एक तो जैसे सिटीजन अगर अवेयर नहीं होंगे तो गवर्नमेंट राइट चूज नहीं होंगे। सेकंड थिंग इज दैट कि अगर यूथ जो है वो एजुकेटेड नहीं है, स्किलफुल नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। वो चीज स्किलफुल करने से सुनिए जी, अगर स्किलफुल नहीं होने का कारण बात कर रहे हैं, उससे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स जो एक्सपर्ट्स होना तो सबसे पहले चाहिए ना। एग्जैक्टली दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बट आई वाज टॉकिंग कि कैसे कोलैप्स कैसे होगा, वो तो आप बता रहे हैं वो है कि एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो कोलैप्स कैसे होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर द वंस मेकिंग ना। So अगर हम लोग and I think it's unfair because education is the driving force of the country from our colleges, because the government salaries are not too high and people rather go for different jobs. So very skilled people and very knowledgeable people go for other jobs rather than the teaching profession. Right. So we have to increase the budget and we have to increase the salaries so that we get proper skilled and proper work staff here. Yeah. एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने का मतलब बोल रहे हैं ना, सिटीजन के भी अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को जो प्राइमरी स्कूल है हमारे गांव में, वहाँ पर जो टीचर होता है वो 12 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं, तो मतलब सिटीजन अवेयर नहीं है,
इसलिए वो लोग मतलब उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर सिटीजन अवेयर होगा तो वो लोग भी टाइम में आएगा और बच्चों को नहीं सिखाएगा ठीक से। वो उसके लिए तो पिनलाइज किया जा सकता है उनको, लेट्स से थंब इंप्रेशन से उनको एंट्री और एग्जिट टाइम दिया जाए, और वो कैसे उसका सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग हो जाए कि कैसे पढ़ाया जा रहा है। अगर अवेयर नहीं होगा तो कैसे होगा? रूरल एरिया में तो नहीं रहता है वहाँ स्कूल्स पर। में स्पोर्ट्स Speak one by one, please. जिससे उनके मेंटल अवेयरनेस अच्छी हो। Okay, I think now one of you can conclude. Yeah, I would like to conclude on behalf of my team. The discussion Yes, was very please. good, and people has given a lot of points. Like starting from Bank and Amar, they were saying that private schools are increasing and government school has dropped like 52,000. One was this, that is the main reason where like even the basic education won't be there, then how they will reach. Luxury education is luxury, that is a problem. Other than that, practical the education system is not practical rather than theoretical, that is also discussed. And infrastructure की कमी है, ये भी डिस्कस हुआ। एंड पवन गेव ए वेरी गुड एग्जांपल दैट कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन करके किसी तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अदर देन दैट कि जो एजुकेशन सिस्टम है, अभी नई पॉलिसीज फॉर्म हुई है, उनका इम्प्लीमेंटेशन अगर होता है तो दैट इज मच बेटर फॉर आवर नेशन बिल्डिंग। एंड एक और जो चीज जो डिस्कस हुई कि प्राइवेट जो है अब हायर एजुकेशन, वहाँ पे क्वालिटी खराब है, तो अगर उन्हें अच्छा किया जा सके तो देन वील आल्सो get a good education and all that. So with that, with all that, I summarize this, conclude this GD. Okay. So, okay, now let me give you the feedback of this topic, that is collapse of education is the collapse of a nation. First, I'll give you the feedback individually. I divided this into 3 parts. Introduction part का मैं तुम लोगों को feedback दे रहा हूँ. Body part में कुछ लोग हैं जिन्होंने बॉडी पार्ट में, बीच वाले पार्ट में कम पार्टिसिपेट किया एंड दे मे बी एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ लेस पार्टिसिपेशन इन द बॉडी। तो बॉडी में जिन्होंने बहुत ही कम बोला है वो है सत्यजीत, आफ्टर दैट देयर इज रणधीर एंड देन दीप्ति एंड अंकित। आपने बहुत कम बोला है बॉडी पार्ट में, आपकी प्रेजेंस बहुत ही कम थी बॉडी पार्ट में। नीड टू स्पीक एक्चुअली, कीप योरसेल्फ म्यूट ऑल ऑफ यू। Okay, so you people have very less spoken in the body part. बोलना बहुत जरूरी है। No doubt ये ग्रुप बड़ा है, 11 लोगों का ग्रुप है, लेकिन कई जगह PSUs में 11 लोगों का ग्रुप बना है। जैसे मैं आपको HURL का एग्जांपल दूं, या जो HPCL का राजस्थान रिफाइनरी थी, वहां पे बहुत लंबा ग्रुप भी बना था, 12-12 बच्चों का ग्रुप भी बनता है। So typical size होता है 7-8 बच्चे, और it can go up to 11 students, the group which we had today. तो आपको दोनों ग्रुप्स के लिए तैयार होना है, and you in this particular group sometime you don't get chance to speak, so you need to enter, and that is a practice you have to do. Okay, if you are not getting chance how to enter in the GD, watch the video how to enter in GD, you'll get some idea from there also. So you need to participate, you need to enter in the GD. Now push yourself, listen to somebody and then cut him short and then enter the GD. So that is what you have to do. So that is the point for which you have to keep in your mind. Now, starting with Amar, I'll give 6 marks to Amar, to you in the introduction. He talked about nation building, education as a nation building process, and he talked about youth. His introduction was very long, but he could not give direction to the discussion. So I will say, Amar, your introduction was long enough, but content was missing. Content enriched नहीं था, और direction आपने उसमें नहीं दिया। बाद में आपने बॉडी में बातें की कि अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स एक इशू है और स्कूल बंद हो रहे हैं, 50,000 स्कूल बंद हो चुके हैं एंड ऑल। सो जब भी कोई डाटा देना है तो आप डाटा को बड़े मेटिकुलसली देना, डाटा गलत नहीं होना चाहिए। एंड दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स इज वन ऑफ द रीजन। सो ऐसा कोई टॉपिक जब आए, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, देन नॉट ओनली यू शुड टेल द रीजंस but also what can be the solution for that particular problem. I will tell you what classification of this topic would be. Satyajit, I'll give you 5.5 in the introduction. He said that you need not to drop a nuclear bomb to destroy a nation. Education, you destroy education, nation gets destroyed. Good line to start with. But after that, you could not give that direction to the discussion, and you could not enter, you could not tell something concrete that how discussion should go, in which direction it should proceed. I told you that
introduction has a structure, and if that structure is missing, introduction may, if you start giving the points which you are to give in conclusion or you are to give in the body, then introduction is spoiled. So that is the point. You later on said private schools are unaffordable, so government is to take the largely responsibility. So that is what you said in the this thing. Body part mein your participation, Satyajit, was less. Bhupender, I'll give you 6.5 in introduction and then 7 in the conclusion. Body mein you spoke. You talk about knowledge and skill, right and wrong, national growth. Citizens should know how to choose the government. So the points given by Bhupender were relevant for the introduction. He said it is a skill, it is a knowledge. Then he said right and wrong, moral education. Education does not mean only data. It is a moral education is very important. And then you said national growth. Citizens should know how to choose the government. That is very, very important. We are the largest democracy. The other day I told you that either udhar se words dalna start karo. We are the largest democracy of the world, and it is the government of the people, for the people, by the people. And if people are aware, we will get very good representatives. Also, we are representative government. तो तुम इधर उधर जो सीखते हैं उसको डालो ना इसके बीच में, आप लिंक बनाओ ना उसका. जब तुम लिंक बनाओगे तो चीजें बैठेंगी. What is the difference between other day in the democracy wale GD mein I told you, India is the largest democracy but not a mature democracy. Didn't I tell you? And more mature democracies are UK and USA. So you can say that these are mature democracy because of the people are aware, people are knowledgeable, people are educated. India mein trouble kya hai? 18 years pe you become voter, but you are not literate, you are illiterate. So you cannot choose your representative. And then wrong people are chosen for parliament, and then the entire system is spoiled. That is how it goes, right? This is how you have to link the things. So you have to make a linkages of various things. That is what you have to do. So that part was missing actually. So why it collapsed? Then you gave the direction, Bhupender, why it collapsed and how to improve. That some kind of classification direction also you gave. Then later on, Bhupender said he was telling very relevant point, but I think Samar did not let him complete. He was telling why collapse is happening. He said collapse is happening because of 3 reasons. I could listen only 2. Citizens are not aware, so they can't choose the right government for that. That is exactly what is happening. If we are not aware, we'll be divided into caste, religion, region, and someone will make misuse of it. Like British divided and ruled the country, that somebody will come and he will divide us on caste basis, on religion basis, on region basis, and fulfill their political ambitions and at the cost of the nation. That is what exactly will happen if citizens are not aware. Education lifts you beyond your caste, beyond your religion, beyond your region. I am technocrat. If you ask what is my caste, somebody asked Kalam, what is a community or something? He said, I am Indian, I am a scientist, I am an educationist. So education तुम्हें सिखाती है, इन चीजों से ऊपर ले जाती है तुम्हें. You don't talk about these petty issues then. So that and country में citizens will treat them as citizens of the nation. They will not say then I am Telugu, I am Marathi, I am Hindu, I am Muslim, I am this caste, I am that caste. We are Indian, we are educated, we are engineers. That is how education will put you in particular thing. Just ask yourself, who gave you this caste? Who gave you this religion? You that is not earned by you. This is the moment you are born in that. You cannot say no, I don't want to born as a Hindu, I don't want to born as Muslim. But tell me, who made you engineer? That is you. That is your own earning. So that is what education teaches you. That is how you have to go for it. Now for Varun, let me tell you, Varun, I'll give you 6 in the introduction, Varun. He said, destroy education, destroy the entire nation. That is a topic he started with. And then he said, problem solving skills should be there. Then he started talking about ISRO and Tejas and all. But Varun, these things are to be added in the body. Actually, they are not added in the introduction. These things are to be provided in the body when you are saying Mangalyaan ka cost is no less than that of NASA satellite. So that is not introduction component. That introduction has to be holistic. It should not be data laden. It should not be data oriented, right? Then Pawan, I'll give you 7 in Pawan. So best introduction was from the Pawan side. So Pawan said, okay, Japan is leading economy, and though Japan is a country of natural disasters, but it's the leading country. Why? Because see the educational system of the people. And when we talk about education, it is not the certificate 10th, 12th you earn. It is a skill which you earn, right? So education system provides you skill. You run the companies from the garage. You think of Honda and Sony's, how these all started. So why that ecosystem is not there in our country? Because our education is highly, focused towards the theoretical learning rather than the skill enhancement.
So then he said, okay, there is another country which is very good at that. I forgot what country, Pavan, you mentioned. So that country is not remembered. And then he talked about moral and ethics and science and arts. He talked about infrastructure things lacking, that those things Pavan said. So introduction part for Pavan was good. Humayun said, Humayun, I'll give you 5.5 in the introduction. No need of war or arm to destroy a nation. Nation can be destroyed. That line was good, but later on you lost the rhythm in the introduction, Humayun, and later on you could not add much in the introduction. Body may you kept on speaking a little bit, so increase that pace. You said feedback for the teacher should be given. That was a relevant point from your side. So any good relevant point, listeners will listen to you. Right now I'm listening to you. There will be 4 or 5 observers. So make sure they will listen to you. You understand that? They will listen to each relevant thing coming from you, and you will be given marks for that. So Humayun said feedback of teachers should be given, which is not provided. Why government teachers? It's a tragedy of our nation that a government school teacher does not want his child to study in his school. He wants in the private school. A private school teacher wants to become government school teacher. You think this is a very, very tragedy actually. Government, private school teacher, you ask any private school teacher, how much you are earning? 25,000 rupees. How government teacher is earning? 55,000 rupees. So private school teacher says, I want to become government school teacher. Why? More salary, no work, enjoyment. And ask any government school teacher where you want your kids to study in the private. Why? पढ़ाई होती है वहाँ, यहाँ पढ़ाई नहीं होती. That is the tragedy of education system. तो भाई इस तरीके से बोला करो, वहाँ पे बिंदास बोला करो. जो reality है वो reality है, चाहे हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, इस तरीके से बोलो कि I want to tell you a small thing here, friends. एंड एजुकेशन सिस्टम हमें समझ आ जाएगा इंडिया का. मैं इसमें छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर से पूछो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहते हो, बोलेगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, अपने स्कूल में नहीं. और एक प्राइवेट स्कूल के टीचर से पूछो तुम कहाँ पढ़ाना चाहते हो, तो बोलोगे मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ. उसका भी रीजन पूछो क्यों पढ़ाना चाहता हूँ, एंड द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ अस. दैट स्पीक्स अबाउट आवर एजुकेशन सिस्टम. तो ये हुमायूं का एक पॉइंट इस तरफ रेलिवेंट था. रणधीर, आई गिव यू 6.5 इन द इंट्रोडक्शन. बॉडी में यू डिड नॉट स्पीक. नेल्सन मंडेला सेड कोलैप्स ऑफ एजुकेशन इज कोलैप्स ऑफ नेशन. अभी क्या किया करो कि जो तुम्हें नॉलेज मिला है आज के टॉपिक से उसको कॉपी पे लिखो, एंड मे बी तुम किसी और जीडी में इस चीज को बोल पाओ. एजुकेशन नेल्सन मंडेला. एक और चीज तुम्हें बोलूंगा, आज नेट पे जाओ, गांधी जी के जितने भी गांधी जी के जो वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, वो लिखो कॉपी में. नेल्सन मंडेला की लिखो, अब्राहम लिंकन की लिखो, स्वामी विवेकानंदा की लिखो, अब्दुल कलाम की लिखो. तो इन बड़े बड़े लोगों की कुछ लाइंस लिखो, 20-50 लाइन लिखो, बहुत अच्छे ओरेटर बन जाओगे. एन आई फॉर एन आई विल मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड. ब्यूटीफुल बाय गांधी जी, ब्यूटीफुल. जहां तुम लड़ते हो कि उसने उसको मारा मैं उसको मारूंगा, चलो एन आई फॉर एन आई, लेट्स मेक एवरीबॉडी ब्लाइंड. गांधी जी की लाइन है वो. मंडेला की लाइन, एंड देन अब्राहम लिंकन सेड व्हाट इज द डेमोक्रेसी, वी रूल फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल. यू सी दिस इज, एंड दैट नेल्सन मंडेला, कोलैप्स ऑफ एजुकेशन, कोलैप्स ऑफ अ नेशन. So these kind of कुछ 5-6 लोग लो फेमस, उनके प्रोवर्ब्स को कॉपी पे लिख दो. अब जब जीडी आ गया तो ऐसा नहीं कि जीडी कुछ भी आ गया तुमने वो डालना ही डालना है, ऐसा नहीं करना. ऐसा नहीं लगना चाहिए उसको कि ये रट के आया है 4 प्रोवर्ब, उसने आज ये डालने ही डालने हैं. ये वोकैबुलरी के 4 वर्ड्स हैं. जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट. Okay, so remember those proverbs, but does not mean that you will put those proverbs anywhere. कॉपी के ऊपर लिखो उसको, ये काम करो मेरे कहने से, कॉपी के ऊपर उसको लिखो. एंड जितना भी जीडी होता है उसमें जब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं उनको भी कॉपी पे लिखो. आपको नहीं पता कौन सी चीज कहाँ यूज हो जाएगी. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, डेमोक्रेसी की चीज यहाँ पे यूज हो रही है एजुकेशन में, क्योंकि एक लर्नड सिटीजन डेमोक्रेसी को मैच्योर डेमोक्रेसी बनाता है. एक लर्नड सिटीजन डेमोक्रेसी को मैच्योर डेमोक्रेसी बनाता है. कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज अगर आपको नहीं है तो आपको नहीं पता लगेगा. आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको अपने इंटरेस्ट के लिए डेविएट कर देगी अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आपको पता नहीं है. अगर आपने प्रेम्बल नहीं पढ़ा, प्रेम्बल अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं पढ़ी हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसमें एक ड्यूटी है एब्ज्योर वायलेंस, कि आपको नेशनल प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब नहीं करना है. वो फंडामेंटल ड्यूटी है. अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो क्या करोगे? रेल को आग लगाओगे, ट्रेन को आग लगाओगे. भाई ये चीजें आपकी जो ये है ना कम्युनिकेशन एंड कन्विंसिंग पार्ट, इसको बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं ये चीजें. आज का डिस्कशन हमारा क्या है कि एजुकेशन,
लैक ऑफ एजुकेशन, कंस्टिट्यूशन का नॉलेज नहीं है, रेल को आग लगाओ, ट्रेन को आग लगाओ, फेल हो गया नेशन, तो वैसे ही कोलैप्स कर गया। कोलैप्स करने का मतलब क्या है नेशन का? यही तो है कोलैप्स करने का मतलब। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपने ट्रेन में आग क्यों नहीं लगाया? सब लोगों ने यहाँ जीडी क्यों कर रहे हो बैठ के? जाओ ट्रेन पे आग लगाओ। रीजन मीन्स यू आर एजुकेटेड, मे बी यू आर हैविंग दैट नॉलेज। और एजुकेशन का मतलब डिग्री से नहीं है यहाँ पे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपने एक पॉइंट बोला मॉरल एंड एथिक्स ऑल्सो। आपको ये भी पता होना चाहिए लड़ाई करनी कैसे है। महात्मा गांधी ने लड़ाई कैसे की ग्रेट एम्पायर ब्रिटिश के साथ? क्या वो वायलेंट लड़ाई थी? नॉन वायलेंस थी, क्योंकि वो वैसे उसी से गिर सकता था। वो वायलेंस क्या नहीं गिरता है ब्रिटिश एम्पायर कभी भी। अगर तुम वायलेंट होते तो ब्रिटिश एम्पायर कभी नहीं गिरता। एवरीबडी ट्राइड, इवन सुभाष बोस ट्राइड एंड एवरीबडी ट्राइड, इट डिड नॉट। बट नॉन वायलेंस के साथ पूरा कंट्री खड़ा हो गया, पूरा वर्ल्ड देखने लगा, तो चीजें मूव करना स्टार्ट किया। सो दिस इज समथिंग व्हिच यू लर्न थ्रू एजुकेशन। Anyhow, then education is answer to most of the questions. That is what Randhir said. Then Mayank, I'll give you 6 marks in the introduction. Body mein you started the body part and you spoke in the body. You said reason in our nation. What is the reason for this education, poor education in our nation, and what can be the solution? We should discuss about that. Syllabus की बात की आपने. Introduction में you could not give the direction actually. There's a reason I gave you 6. Otherwise you could have got more than that. You said some very relevant points. You said quality of teachers, recruitment process. You told teacher training and teacher recruitment. These were the important points which you gave. Observe these important points from you, and you will get credit for that. I will also advise you not to play the role of coordinator. If there is a chaos in the group, don't say okay, Mayank, okay, Bhupender, you stop. Let Rohitash speak. Satyajit, let Rohitash. You are not to do that. Because sometime observer wants chaos. कई बार मेरे को चाहिए मच्छी मार्केट वहां पे, क्योंकि मेरे को तुम्हें उसी के लिए ट्रेन करना है। मेरे को एक मैनेजर चाहिए जो मच्छी मार्केट में हैंडल कर सके। तो टेल मी हाउ शैल आई गेट दैट मैनेजर? I'll take the manager. I tell you, I remember during my graduation we had a GD. Many companies came. We had a GD, and there were 10 students sitting in our class for that company. One of the student whom everybody hated actually as a friend. क्लास में होता है ना कुछ लोग ऐसे चेपू जैसे होते हैं जो बोलते हैं कोई नहीं सुनना चाहता। वो बंदा बोलना स्टार्ट किया, भाई साहब रुका ही नहीं, वो बोलता ही गया, हंसता रहा, ऐसे टेबल पे हाथ मार के हंस रहा था। हम कुछ बोलना स्टार्ट करते, वो टेबल पे हाथ मारता और हंसता, हम चुप हो जाते। हम ये सोचते कि ऑब्जर्वर है तो यार ऐसे नहीं करना है, और वो फिर किसी को बोलने लगता है, उसको दोबारा चुप करवा देता। You know, at the end he only got selected, we were rejected. And then we went to that fellow, company fellow, we said, sir, did you observe him? Nobody likes him in the class. How could you even select him and not us? He did not let us speak. वो बोलता मेरे को ऐसा ही बंदा चाहिए who does not let others speak actually. मेरे को वही आदमी को रिक्रूट करना है। मेरे को एक्चुअली में ये चीज चाहिए थी, बड़ा मुश्किल से पीस मिला है मेरे को, तो अब मैं इसको तो लूंगा। सो यू अंडरस्टैंड, समटाइम यू नेवर नो कि उसको क्या देखना है। तो तुम अगर कोऑर्डिनेट करवा दोगे, अगर मैं उसको बोलता कि नहीं यू साइलेंट यार, दिस इज नॉट द वे यू शुड स्पीक, यू चुप हो जा, तो ऑब्जर्वर का पर्पस डिफीट हो जाता है। उसको अपना बंदा मिल रहा है, तुम उसको चुप करवा रहे हो यार। So you understand, this is, you are not to play a role of coordinator in the GD. Then comes to Rohitash. Rohitash said, okay, important है और currently relevant topic है। ये तो current relevant का topic नहीं है, current relevant नहीं है, ये topic है thought provoking। तो मैंने आपको बोला था ना यार, कुछ words लिखो इसको, ये है thought provoking topic, and this is something which you are to basically give the name। मैंने आपको बोला था कुछ नाम सोचो, हर topic को currently relevant नहीं बोलना, हर को इंपॉर्टेंट ना, तो ये इंपॉर्टेंट है ना करंट, ये थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक है, एंड मे बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल फ्यूचर, मे बी दैट वे यू कैन से। फिर रोहिताश ने बोला कि हम आवर एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग डाउन, गवर्नमेंट स्कूल्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं होगा, नो कल्चर, नो समथिंग। बट रोहिताश, आपने डायरेक्शन नहीं दिया डिस्कशन को। आपने ये नहीं बोला कि हमें बोलना क्या है, आपने इंट्रोडक्शन में ये नहीं बोला कि भाई साहब हम ऐसे बात करेंगे, आगे ये डिस्कशन करेंगे। तुम लोगों में से डायरेक्शन नहीं दे रहा है कोई भी नहीं कि ऐसे ऐसे। लेट्स फ्रेंड्स डिस्कस अबाउट व्हाट आर द रीजंस ऑफ कोलैप्स ऑफ द एजुकेशन एंड हाउ वी कैन रिवर्स दिस प्रोसेस। लेट्स हैव अ डिस्कशन लार्जली ऑन दीज टू हेड्स। तो ऐसा बोलो ना, उसको डिस्कशन का कोई डायरेक्शन दो ना यार। देन कम्स दीप्ति। दीप्ति, आर देयर? Yes, sir. Okay, so Deepti, I'll give you 6.5 in your introduction. She said, I am very much interested to discuss this topic. Though later on you did not even utter a single word in the discussion. लेकिन शुरू में उन्होंने बोला I am very much interested in discussion. वहां से एक अच्छा आइडिया मिला
कि आप किसी टॉपिक में जिसको आपको लगता है यार ये तो मेरा टॉपिक आ गया यार, उसमें आप बोल सकते हो कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन एज दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ये आप बोल सकते हो, लेकिन तब जब आपको सच में लगता है, जैसे एजुकेशन है, अब मैं तो हूं एजुकेशन में, अगर मेरे को खड़ा करके बोल दे कि आज भाई साहब आपको ना एजुकेशन के बारे में बोलना है, तो मैं बोलूंगा मेरा दिन बन गया यार, मैं बोलूंगा दिन बन गया मेरा, दिस इज माय फेवरेट टॉपिक एंड आई कैन स्पीक आवर्स ऑन दिस टॉपिक। तो अगर आपको लग जाए कि कोई टॉपिक ऐसा है, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट, so I have felt this thing very closely and I'm really excited friends to participate in this topic, and I'm very sure you are also equally excited for this. So then you speak something. So I'm really interested to discuss this topic. Instead of that, you can also say I'm excited to participate in this topic because this topic is close to me and it's my favorite topic of discussion. That can be the thing. Then she said education is backbone of a nation, knowledge, moral values and all. If we want peace and prosperity, गांधी जी की बात उन्होंने बोली तो वो सही है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि तुम 10 लोग लो, 10 people you choose, एंड उन लोगों के प्रोवर्ब्स मैं भेजता हूं, तुम लोगों को भेजता हूं, उनके प्रोवर्ब्स को रटो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अपनी लाइन नहीं बोलनी उसमें, एन आई फॉर एन आई विल मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तो ऐसा नहीं बोलना है मेक वन आई ब्लाइंड मेक अनदर आई ब्लाइंड सो एंटायर वर्ल्ड बिकम्स ब्लाइंड, दिस इज व्हाट गांधी जी सेड। गांधी जी ने ये नहीं बोला। ये लोग जब बोलते हैं तो वैसी ही बात बोलनी होती है तुम्हें, क्योंकि इनसे अच्छा कोई नहीं बोल सकता, इन्होंने जो बोल दिया भाई साहब वो बोल दिया, वो बहुत अच्छी बात होती है, राइट। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू मेमोराइज, उसको रटना है तुम्हें और उसको आपने कहीं ना कहीं जीडी में यूज करना है। मैं भेजता हूं तुम्हें वो सारे के सारे वर्ड्स। दीप्ति बीच में इंट्रोडक्शन में लुक्स लाइक मेरी तरह आप भी गायब हो गए थे, वर यू देयर और यू आर नॉट देयर, तुमने एक लाइन नहीं बोला दीप्ति, राइट, एक बार बोला था बीच में, तो इसका मतलब उस टाइम मैं गायब हो गया था, राइट। सो यू आर टू बी देयर एंड यू आर टू स्पीक, 4-5 बार बोलना है, 4-5 बार बात करनी है तुम्हें, राइट। अंकित ने अंकित आई विल गिव यू 5.5, आपका बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, अच्छा नहीं था, और इंट्रोडक्शन में बहुत ही कम बोला, और बीच में भी आपने अंकित पार्टिसिपेट नहीं किया, आपको कोई चांस नहीं देगा। हाँ, आप में से अगर कोई नंबर लेना चाहता है तो बीच में जरूर बोल सकता है कि आई थिंक अंकित यू हैव नॉट पार्टिसिपेटेड सो फार, सो वी वुड लाइक टू टेक योर ओपिनियन ऑल्सो, ऐसा बोल देना बीच में, जैसा शायद मयंक ने एक आधी बार बोला था किसी के लिए, वो बोल देना आप कि अंकित आई थिंक यू हैव नॉट पार्टिसिपेटेड सो फार, सो प्लीज गिव योर पॉइंट ऑल्सो। लेकिन इसको बोलने से पहले आप जरूर पार्टिसिपेट कर लेना, ऐसा ना हो पूरी जीडी में आपने यही लाइन बोली और वो बोले कि अंकित यार, अंकित ने रिवर्स करके बोला कि भाई तू बोल ले ना, मेरे को जो बोल रहा है तो तू ही बोल ले, तू भी तो नहीं बोल रहा। ऐसा ना होना चाहिए कि आप भी ना बोलो और दूसरे को बोलो कि भाई बोल ले, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसा आएगा एक्चुअल में, यहाँ तो तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, एक्चुअल में आएगा कोई भी नहीं बोलेगा, तो बच्चे फीडबैक देंगे कि सर 3 मिनट हो गए कोई मुंह ना खोले, मुंह तो मैं भी नहीं खोलना चाहता था, पर फिर मेरे को शर्म ही आ गई, मेरे को लगा यार कुछ तो बोल लो, तो मैंने मुंह खोल दिया सर। ऐसा एक्चुअल में सिचुएशन होता है, सो इट शुड नॉट बी देयर विद यू, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फीडबैक। नाउ लेट मी गिव यू दिस एजुकेशन सिस्टम का क्या था। सो द टॉपिक इज वेरी रेलेवेंट, यस, कोलैप्स ऑफ एजुकेशन इज कोलैप्स ऑफ नेशन। So friends, we should first understand what do you mean by education. Education is a very broad term. So it is related to learning, not only literacy, it is related to learning. And when we say education, it means theoretical education, what we know curricular education, and it also means the skills which we should have, so that we makes us, you know, employable citizen. Later on, we can get employment. At the same time, we should become responsible citizens. So education also means moral and ethics. रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है तुम्हें, स्किल्ड तुम्हें एम्प्लॉय बनाना है, तुम स्किल भी अपने एनहांस कर सको, तो इस तरीके से एजुकेशन इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। नाउ वी विल डिस्कस दिस एंटायर टॉपिक अबाउट व्हाट, एंड वी विल बी डिस्कसिंग फ्रेंड्स दिस टॉपिक रिलेटेड टू इंडिया। नन ऑफ यू सेड दैट यू आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक फॉर इंडिया, टॉपिक में नहीं दिया हुआ है कोलैप्स ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम, तो भाई आर यू रेफरिंग इंडिया और यू रेफरिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान और अमेरिका, व्हाट आर यू रेफरिंग? सो आपने बताया नहीं वो, तो आपको ये चीज बोलनी है कि फ्रेंड्स द टॉपिक गिवन इज दिस, दो दिस टॉपिक इज रेलेवेंट फॉर एनी नेशन, बट वी विल बी टॉकिंग दिस टॉपिक लार्जली फ्रॉम इंडियन कंटेक्स्ट। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर ये टॉपिक मैं अमेरिकन स्टूडेंट्स को दूं तो क्या वो ऐसे ही बात करेंगे क्या जैसे आपने किया? उनकी अलग प्रॉब्लम्स हैं यार, वो गोली चलाते हैं, तुम लोगों ने तो बंदूक भी नहीं देखी है अभी तक, वो लोग तो बंदूक लेके गोली मार रहे हैं, उनकी अलग प्रॉब्लम है यार, उनका प्रॉब्लम अलग लेवल पे चल रहा है, हमारा अलग है। अफगानिस्तान में अलग लेवल पे प्रॉब्लम होगा, उन्होंने स्कूल ही नहीं देखे होंगे, तो ये वैसा कहीं स्कूल काबुल में एक आधा दिखा दो हमें, जैसे तुम जाते हो ना कोई देखने को बहुत बड़ी चीज बन गई है पटेल साहब की मूर्ति, वैसे स्कूल देखने जाते होंगे काबुल में, यार स्कूल है देख के आते हैं, तो वो अलग प्रॉब्लम है, अलग लेवल पे है। सो दिस वी आर टॉकिंग फॉर इंडिया,
and you say that. We will be discussing education system collapse के कारण क्या हैं. कारण पहले तो टीचिंग पे आ जाते हैं. टीचर इज द मेन पॉइंट इन एजुकेशन. इफ देयर इज नो स्कूल, इफ देयर इज नो बुक, इफ देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड टीचर, यू आर डन. काम हो जाएगा. ना बोर्ड चाहिए भाई साहब, ना किताब चाहिए, अच्छा टीचर चाहिए. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ट्रेजेडी इंडिया की ये है कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मिसिंग जो पहले होती थी. जो पहले होते थे गुरुकुल सिस्टम, आपको जानते हो, गुरुकुल का सिस्टम आप जानते हो. हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम बिहार? एनीबॉडी फ्रॉम बिहार हियर? नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा, हाँ सत्यजी, नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी. एनीबॉडी फ्रॉम बंगाल? टैगोर का शांति निकेतन हुआ करता था. यू अंडरस्टैंड दैट? सो वो वहां पे एजुकेशन, वो टीचर होते थे. टैगोर का जो ओपन एयर स्कूल सिस्टम था, उनका जो सिस्टम था गुरुकुल वाला, जो शांतिवन वाला, वो क्या था? ट्री के नीचे बैठ के पढ़ा रहा है टीचर. उसके पास इधर ओवरहेड प्रोजेक्टर लग गए, भाई सर ये लगा दिया, वो लगा दिया, कैमरा लगा दिया. नो, वो ओपन में पढ़ा रहा है, लेकिन टीचर बहुत जबरदस्त है. तो वहां से एजुकेशन हम ग्लोबल लीडर बने. अब विद पैस ऑफ टाइम क्या हुआ? विद पैस ऑफ टाइम क्या हुआ कि जो हमारा नेचुरल टेम्परामेंट था, एंड आई टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली, नेचुरली वी आर गुड टीचर्स. हम लोग इंडियंस नेचुरली अच्छे टीचर हैं, क्योंकि लॉजिकल है बहुत ज्यादा काम, और टीचिंग लॉजिकल चीज है. अभी हमें ये टॉपिक और डिस्कशन करना है. देयर विल बी अ फेलो हु विल मेक वेरी गुड जस्टिफिकेशन व्हाट ही इज सेइंग. तो हम लोगों ने वो टीचिंग वाला जो कंपोनेंट है वो मिस कर दिया. क्वालिटी टीचर्स में 3 चीज आ गई. क्वालिटी ऑफ टीचर होना चाहिए, मोटिवेशन इन द टीचर होनी चाहिए, ट्रेनिंग ऑफ द टीचर होनी चाहिए. तो अच्छे टीचर में क्या चीज होनी चाहिए? 3. सर क्वालिटी होनी चाहिए उसकी. उसका क्या मतलब है? उसका अपना एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, अपना नॉलेज बेस अच्छा हो. जिसने खुद वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा वो आपको कैसे पढ़ाएगा? तो उसको अपनी मेहनत करनी है. क्वालिटी कैसे बढ़ती है? मेहनत करके बढ़ती है टीचिंग की. आपका क्वालिटी ऑफ किसी भी सब्जेक्ट का कैसे इंप्रूव होता है? आप उसको मेहनत करते हो. सो टीचर शुड बी बाय चॉइस एंड ही शुड पुट एफर्ट इन दैट. नंबर 1. नंबर 2, मोटिवेशन. अब टीचर में मोटिवेशन क्यों नहीं है? टीचर मोटिवेशन इसलिए नहीं है कि शायद उसको सैलरी कम मिलती है, प्राइवेट स्कूल. फिर आप बोलोगे गवर्नमेंट में क्या प्रॉब्लम हो गई सर? गवर्नमेंट में क्यों? आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट से गलत आदमी चूज नहीं होना चाहिए. आप लोगों ने से किसी ने एग्जांपल नहीं दिया. उत्तर प्रदेश पब्लिक वो चल रहा है आजकल, पॉलिटेक्निक लेक्चरर की पोस्ट का. इतने वीडियो में डाल चुका हूं यार. आपको पता है उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक कॉलेज के लेक्चरर्स की पोस्ट के लिए आईआईटी के ग्रेजुएट्स ने भी अपीयर किया है, बॉस ने. क्यों ऐसा हुआ बताओ? क्यों ऐसा हुआ? ऐसा नहीं कि आईआईटी के ग्रेजुएट्स का लेवल गिर गया, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए जो उन्होंने सैलरी रखा, जो उन्होंने इंसेंटिव रखा, वो बहुत अच्छा लगा लोगों को. और अभी इंटरव्यू चल ही रहा है और वो रिक्रूटमेंट भी देते जा रहे हैं, रिक्रूट भी कर रहे हैं वो, और फेयर रिक्रूटमेंट चल रहा है. तो ये सब चीज देख के अच्छा कैंडिडेट टीचिंग के लिए मोटिवेट होगा, अच्छा कैंडिडेट आएगा. अब उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक लेक्चरर को अगर आईआईटी के बीटेक, एमटेक, पीएचडी मिल रहे हैं, अच्छे लोग मिल रहे हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस अच्छी हो रही है, तो यार वो पढ़ाएगा भी अच्छा. रिक्रूटमेंट में चेक करना है ना आपको. तो आपको जो टीचर की मोटिवेशन लेवल का पता लगता है रिक्रूटमेंट के अंदर. तीसरी चीज ट्रेनिंग पार्ट. अब टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दोगे तो काम नहीं आएगा. आप में से किसी ने एग्जांपल दिया दिल्ली का, आई थिंक मयंक ने दिया, किसने दिया कि ट्रेनिंग होता है, बाहर भेजा जाता है टीचर्स को. दिल्ली में, दिल्ली के स्कूल में इंप्रूवमेंट क्यों हुआ है? टीचर्स को ट्रेनिंग दिया गया भाई साहब. उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के अच्छे टीचर क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस फेयर है, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी दे रहे हैं. टीचर मोटिवेट होगा, इंटरनली मोटिवेट होगा. तो टीचर के अंदर 3 चीज चाहिए, क्वालिटी, मोटिवेशन, ट्रेनिंग. ये तीनों मिसिंग है. मिसिंग है तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा. दूसरा आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर. गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके देखो, दीवार पे पेंट तक नहीं है. टीचर्स को सैलरी बहुत है, पेंट तक नहीं है, लैब्स नहीं है. प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में डिफरेंस क्या है? प्राइवेट के पास कम लैंड है लेकिन उसमें लैब्स भी, उसके अंदर सब लाइब्रेरी भी बनाया है. गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखो, लैब्स क्यों नहीं है? अभी भी गवर्नमेंट स्कूल में तुम खाना खिला रहे हो, लाइब्रेरी नहीं है यार, लैब नहीं है उसके अंदर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग है. तो बच्चा ऑब्वियसली, पेरेंट्स चाहेगा मेरा बच्चा कंप्यूटर तो सीखे, गवर्नमेंट स्कूल में कंप्यूटर तक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग है वहां पे. वो सारी चीजें होनी चाहिए बच्चे के लिए. तीसरा आ गया इकोसिस्टम. इकोसिस्टम एजुकेशन के लिए फैमिली का क्या सिस्टम है? फैमिली कितना मोटिवेट कर रही है बच्चे को पढ़ाने के लिए? कुछ फैमिली में कल्चर होता है एजुकेशन का, एंड वो कम्युनिटीज डेवलप कर जाती हैं. केरला, तमिलनाडु, यू टॉक अबाउट दीज स्टेट्स, यहाँ पे देयर इज अ वेरी हाई, वेस्ट बंगाल, वेरी हाई फोकस ऑफ पेरेंट्स ऑन एजुकेशन. आपको पता है मेरे को मैक्सिमम कॉल्स आते हैं आपके केरला से और वेस्ट बंगाल से इस चीज के लिए कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं हायर एजुकेशन में जा, बच्चा पीएसयू के लिए इंटरेस्टेड है, या रिवर्स. और वहां पे हायर एजुकेशन की बहुत क्रेज है.
कि नहीं आपको हायर एजुकेशन जाना है। पेरेंट्स बोलते हैं कि मैं अपनी लड़की को बोल रहा हूँ कि अभी की जॉब करने की क्या जरूरत है, अभी तो तुम 21 साल 22 साल के हो, तो थोड़ा हायर एजुकेशन लो, तुम्हें एमटेक में एडमिशन मिल रहा है। दैट शोज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। और ये कुछ जगह से आता है जहां पेरेंट्स अवेयर हैं, अदरवाइज सब जगह पेरेंट्स आपको क्या बोलेंगे कि सर पेरेंट्स को बहुत प्रेशर है, बोल रहे हैं कहाँ जा रहा है एमटेक करने, कहाँ जा रहा है पीएचडी करने, अभी कमाना स्टार्ट कर दे, अभी ये क्या करेगा। ये इकोसिस्टम का डिफरेंस है। और मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को मेंटरिंग करने में यहीं पे आती है, इकोसिस्टम। क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, अंकल कुछ बोल रहे हैं, मैं एक टीचर हूं मैं कुछ और बोल रहा हूं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किसकी सुने। वेलफेयर तो पेरेंट्स चाहेंगे, ये तो टीचर के हिसाब से बताएंगे, अब मैं जो उनको एडवाइस दूंगा उनके करियर के हिसाब दूंगा, वहां पे कंफ्लिक्ट आता है। तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं यार, तूने अभी क्यों पैसा कमा के देना, तू एमटेक कर ले तो नौकरी बहुत अच्छी लग जाएगी। अभी तू 4 लाख की नौकरी कर रहा है तो 15 लाख की करने लगेगा, 2 साल वेट कर ले, स्कॉलरशिप तेरे को मिल रहा है। बोलता नहीं सर पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अभी कमाना स्टार्ट कर, 25-30 हजार की नौकरी है, स्कॉलरशिप तो 12,000 मिल रहा है। नो यू सी द डिफरेंस। ये फैमिली इकोसिस्टम। दूसरा आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रुझान किस तरफ है। मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट जो अगर कमिट करेगी, गवर्नमेंट अगर कोई उस तरीके से सोचेगी तो एजुकेशन इंप्रूव हो जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने सोचा तो एजुकेशन इंप्रूव हो गया। You visit different states and you will find what a difference the government can bring. Not every state education system is same. Government system is same. There is a chief minister, there is a minister, there is everything. Funding are also same. Fundings are also same. But the infrastructure is not same. Education system is not same. In some of the states, the education has developed. In some of the state, it is not developed. Difference is education, the government system now. So government को basically push करना है, जिसमें गवर्नमेंट को बजट देना है और गवर्नमेंट को रिक्रूटमेंट अच्छे तरीके से करना है और टीचर्स को ट्रेनिंग दिलवाना है। ये गवर्नमेंट कर सकती है। फिर आगे प्राइवेट प्लेयर्स। अब ट्रबल ये कि प्राइवेट तो अच्छा काम कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन प्राइवेट प्लेयर सब बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते, उनके भी ट्रबल है। फ्री नहीं दे सकते हो, फ्री देने लगेंगे तो चल ही नहीं पाएगा उनका, कैसे चलेगा यार। कई बच्चे जैसे हमें भी बोलते हैं, मैंने बोला यार हम इंटरव्यू का ये पैसा, अब मतलब बहुत से बच्चों के कॉल आते हैं कि सर फ्री करवा दो। यार फ्री करवाने में आप समझो ट्रबल क्या आता है। आई कैन नॉट पे माई टीचर्स, आई कैन नॉट मेंटेन दैट क्वालिटी, आई कैन नॉट हायर द एग्जीक्यूटिव जो 24 घंटे बात सुनने के लिए तैयार है। क्वालिटी नहीं बढ़ पाएगा। अगर आप बोलते हो कि एजुकेशन की कॉस्ट कम कर दो, तो सबसे पहले समझो क्वालिटी गिर जाएगी, क्वालिटी गिर जाएगी, आपके पैसा वेस्ट हो जाएगा। एंड आई कैन नॉट रिड्यूस बियॉन्ड अ लिमिट, सो दैट इज व्हाट हैपेंस। सो एक वो चीज है कि आप बजट कितना दे रहे हो उसके लिए, बजट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, एंड प्राइवेट प्लेयर कैन नॉट अफोर्ड टू रिड्यूस दैट एक्चुअली। अब प्राइवेट अगर आपसे फीस ले रहा है 5,000 रुपए की, तो उसमें आपको क्रिकेट भी करवा रहा है, म्यूजिक भी करवा रहा है, सब कुछ करवा रहा है। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं होता, फ्री पढ़ लो जाके। यहाँ पे एक ट्रबल आता है। लेकिन दूसरी बात भी सही है, इंडिया में गरीबी इतनी है, और कोविड के टाइम में तो और भी है। और जैसे अगर 100 बच्चा मेरे को बोल रहा है कि सर मेरे को फ्री करना है, तो उसमें से ऐसा जेन्युइन भी है 10 बच्चा जिसके पास 2,000 रुपए भी नहीं है। मान के चलो आप, ऐसा बच्चा है जिसका 2,000 रुपया भी नहीं है, बोलेगा सर मैंने कहीं से मांग के 2,000 रुपए लिए। इंटरव्यू में बताता है बच्चा, पहले नहीं बताता, लेने से पहले नहीं बताता कि सर मेरे को फ्री कर दो, बाद में बताता है कि सर, और जब मेरे को दिखता है वो वीडियो में उसका घर दिखता है, तो बेचारा कच्चे से घर में बैठा हुआ है। और कई बार तो ऐसे इंटरव्यू जो मैंने वीडियो पे नहीं डाला, कभी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, वो जहाँ पे वो होते हैं जानवर, जैसे गाय भैंस बंधी है, वहीं पे वो लगा रहा है, मेरे साथ मीटिंग कर रहा है जहाँ गाय भैंस बंधा हुआ है, और बच्चा पीएसयू जा रहा है। सोचो आप, नहीं है पैसा भाई, तो क्या करेगा उसमें। तो अब अगर उनका नहीं है तो वो नहीं अफोर्ड कर सकता एजुकेशन सिस्टम, वो तो गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रही है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रही है। उसके एमएलए कभी एक स्टेट में कभी दूसरे स्टेट में घूम रहे हैं, वो अपना गवर्नमेंट को गिरा रहे हैं, लेकिन वो एजुकेशन नहीं दे सकते। वो ट्रेजेडी है हमारी कंट्री का, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो यू हैव टू फील इट एंड देन यू हैव टू स्पीक इट। फिर रीजन क्या है इसके, आपने जो रीजन बता रहा था, ये भूपेंद्र, आई थिंक भूपेंद्र वाज टेलिंग, और somebody भूपेंद्र वाज ओनली टेलिंग, सिटीजन अवेयर नहीं है। यूथ सिटीजन अवेयर नहीं होंगे तो अपने लिए गवर्नमेंट अच्छी नहीं चूज कर पाएंगे, गवर्नमेंट अच्छी चूज नहीं कर पाएंगे तो गवर्नमेंट कभी भी फोकस नहीं होगी। यार एक अच्छी गवर्नमेंट आ जाए ना, अच्छी गवर्नमेंट, तो कंट्री डेवलप हो जाता है। अच्छी गवर्नमेंट लाने के पीछे अच्छे सिटीजन चाहिए। आज अगर गवर्नमेंट किसी चीज की बात करती है तो इसलिए करती है क्योंकि उसको पता है लोग यही सुनना चाहते हैं, ये लोग यही चाहते हैं। आप गवर्नमेंट को छोड़ो, गवर्नमेंट की बात नहीं करता हूं, आई एम अ यूट्यूबर। यूट्यूब पे अगर आप बकवास सा वीडियो डालोगे तो उसको 1 लाख लोग देखेगा, काम की वीडियो डालोगे तो 100 भी नहीं देखेगा। दैट इज व्हाट आवर कंट्री इज। So why? Because they want only masala, or they want to see that kind of negative things, not positive things. तो citizen अगर अवेयर होगा तो कंट्री डेवलप होगा, हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी अच्छे आएंगे। नंबर 2, youth will become skilled, youth will become employable.
मेरे को 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट, डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं बांटने हैं, मेरे को स्किल देनी है कि जब तेरा डिग्री हो गया, अभी तेरे को पढ़ते हुए 16 साल हो गए, 16 years, now you should be skilled enough to go on the market and earn for yourself. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ढंग से रिवाइज करो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या लिखा है उसके बारे में? देन you know, economy cannot be diversified. If you're not skilled, economy will not be diversified. We got maximum jobs in IT revolution. Why? Because we were IT expert. Now think of which states got maximum pie of IT development. Hyderabad, Bangalore, Madras, because these cities were ready. The people were ready here for IT revolution. Think of Kanpur, think of even Chandigarh, think of northern side, think of Rajasthan, Jaipur, get benefit in IT revolution. No. Why? The governments never thought that IT revolution भी कोई चीज करके होगी। वहां पे एजुकेशन सिस्टम वो पुराना ही चल रहा है, लोग एजुकेटेड नहीं हुए, तो इन स्टेट्स के लोगों को कभी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। आईटी रिवोल्यूशन के लिए, यू नो, स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, दे वर बेस्ट फॉर आईटी रिवोल्यूशन। व्हाई? बिकॉज कंप्यूटर चाहिए, इंडस्ट्री थोड़ी लगानी है मेरे को, अमेरिकन कस्टमर है, अमेरिकन कस्टमर को तो मैं कहीं पे भी इंटरनेट में कुछ कर दूं। तो व्हाई असम, this Nagaland, Manipur, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, why we did not get benefit of IT revolution? Why only Hyderabad, Bangalore and all? Why? Because governments did not provided that ecosystem, education system was not important, Wi-Fi नहीं है अभी तक वहां पे, तो कैसे होगा, बिजनेस कैसे चलेगा बताओ? This is how what the education can bring to the nation. तो एक वो ला सकते हैं, बिजनेस ला सकते हैं हम लोग, और एजुकेशन के थ्रू बहुत सी हमारे बेनिफिट हो सकता है। जैसे मैं कई बार बात करता हूँ कि यार तुम एमटेक करने के बाद कंट्री में यहाँ पे टैलेंट वेस्ट क्यों कर रहे हो? एमटेक का पीएचडी करने जाओ ना, 1 लाख रुपए सेव करो अपने घर के लिए, 2 लाख तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगा, 1 लाख तुम्हारा खर्चा होगा मंथली, 1 लाख तुम घर को भेजो। अभी ये चीज चाइनीज कर रहे हैं, तो इंडियन क्यों नहीं कर सकता? इंडियन उनसे ज्यादा अच्छे हैं। अब तुम कोई भी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी उठा लो, आपको चाइनीज मिलेंगे प्रोफेसर भी, स्टूडेंट भी, इंडियन नहीं मिलेगा। इंडियन यही फाइट कर रहा है बस, जेईआरआरबी, गवर्नमेंट रेलवे की सीट्स कर रही है, तो वी आर नॉट फाइटिंग दैट। एजुकेशन को हम डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं। That is something which is required. Anyway, all from my side. Anything you want to ask or tell? Anything you want to ask or tell now? सर वैसे तो जैसे कि दीप्ति बोल नहीं रही थी उस टाइम, तो आई वाज थिंकिंग कि आई मस्ट आस्क कि हाँ इन्हें भी बोलने दिया जाए, बट ऐसा था कि केओस बहुत सारे लोग बोल रहे थे, तो मैंने पूछा नहीं। और दूसरी चीज कि ग्रुप टास्क में ये करना थोड़ा सही लगता है। ग्रुप टास्क में तो नहीं करना है, ग्रुप टास्क में झगड़ा नहीं करना है, लेकिन नहीं, मतलब कि पूछना कि तुम बोल क्यों नहीं रहे, यू सम पॉइंट्स। एक आधे बच्चे को चांस दे सकते हो आप कि आई थिंक वी शुड टेक योर ओपिनियन आल्सो, आप पूछ सकते हैं एक दो को, जीडी में चलता है वो। यस। और कितना भी क्योस हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो सुन लेगा। 4 लोग बैठे होते हैं वहां पे, और एचपीसीएल के अंदर तो जितने कैंडिडेट होते हैं उतने मेंबर भी होते हैं बैठे हुए, और वही इंटरव्यू में भी जाते हैं। एक मेरे को लगता है एक लड़के को पकड़ लेता है और पूरा उसी को देखता रहता है, ये बोल रहा कि नहीं बोला, बोल रहा कि नहीं बोला, वो करता रहता। अब तुमने 2-3 पॉइंट बोले, सारे ऑब्जर्वर ने पकड़ लिए, जिसने काम की बातें बोली ऑब्जर्वर ने पकड़ लिए, तो पकड़ते हैं। ऐसा नहीं कि तुम मुंह से कुछ बोल दोगे और उसको पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता। कंटेंट वो सुनता है सारा, राइट? और सर इंट्रोडक्शन भी मेरे को वो पार्ट लेना पड़ेगा क्या, या फिर ऐसे 1 by 1 सबको चांस मिलता है? सर 1 by 1 चांस कई जगह मिलता है, कई जगह नहीं मिलता है। आपको एंटर फाइट मारनी पड़ेगी, घुसना पड़ेगा। और कंक्लूजन में भी सर? कंक्लूजन में भी। अच्छा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट चलता है इधर। सर यहाँ पे पूछना चाहेंगे, आपने बोला कि अगर केओस भी है तो बोलना है, तो अगर केओस में भी हम बोलते जा रहे हैं तो क्या ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा? हाँ तो बिल्कुल कर तो रहा था, मैं कर तो रहा था जब तुम लोग सुन नहीं रहे थे उसको। नहीं सर तो इंडिविजुअली समझ नहीं आता ना कौन क्या बोल रहा है इसमें। तुम अपने बात बोलो पैशन के साथ। मतलब सर आपने हमने बोलना स्टार्ट कर दिया, बाकी लोग भी बोलते जा रहे हैं, कोई चुप नहीं हो रहा है, तो क्या कंटिन्यू रखना है? हाँ, इसके लिए तुम इंडियन पार्लियामेंट का सेशन सुनो, और तुम्हें साफ पता लग जाएगा कैसे डिबेट करना होता है। वो कोई नहीं सुनता, इवन स्पीकर भी नहीं, वो कोई नहीं बोलना, वो बात रख देते हैं वो पूरी। सर वो कुर्सी तोड़ने वाला कॉन्सेप्ट होता है सर। नहीं, कुर्सी मत तोड़ना तुम बस इतना करना, तुम बोलना भाई साहब, आपका काम है बोलना, तो कंटिन्यू रखना है ना सर? हाँ, और वो तीसरा वीडियो सुनो, हाउ टू एंटर इन जीडी। ओके सर।
और जैसे अमर का तरीका है ना किसी के बात को करना, अमर का सही है लेकिन वो जी लगा देता है बस, मयंक जी मयंक जी मयंक जी सुनिए ना मयंक जी, वो ऐसा करता रहता है अमर, जी हटा दे, मयंक जी नहीं लगाना, मयंक मयंक कर बस जी। सर वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है सर, बोलते नहीं वहां पे गलत लगेगा वो तेरे को पूरी वो रिपब्लिक टीवी वाली फीलिंग आ जाएगी उसको वहां पे, वो तेरे को नाम जी नहीं लगाना साथ में। बाकी मयंक का स्टाइल बड़ा अच्छा है, मयंक घुस जाता है। अब सीखो ना, एक दूसरे से लर्न करो, हर एक दूसरे से लर्न करो, उनके अच्छे पॉइंट्स क्या है। मयंक को एंटर मारने में प्रॉब्लम नहीं होती कभी, मयंक एंटर मार लेता है, वो आपको नाम ले लेके, आपका नाम ले लेके आपको चुप करवा देगा, 2-3 बार बोलेगा आपका नाम, फिर आप चुप हो जाओगे, फिर अमर अपनी बात बोलेगा। बस इसमें बस जी हटा दो तो मयंक का स्टाइल बहुत अच्छा है, इसका अमर का। तो तुम एंटर कर सकते हो, राइट। चुप नहीं बैठना यार, एनर्जी के साथ स्माइल करो, नॉडिंग करो। मैंने आपको बोला ना 15 मिनट आपका शो है, तो चुप नहीं बैठना, बॉडी मूव करो, सिर मूव करो। क्लास में टीचर का ध्यान उस बच्चे की तरफ जाता है जो नॉडिंग करता है। एक मैं क्लास पढ़ाता था, भुवनेश्वर की बात है, मैं बड़ी लंबी क्लास, 200-300 बच्चे बैठे होते थे, उसमें एक बच्चा नॉडिंग करता रहता, नॉडिंग, मेरा ध्यान उसी की तरफ जाता था और मैं मैक्सिमम टाइम उसी की तरफ देख के पढ़ा भी रहा होता था। एक दिन मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तो उसने पूरा लेक्चर सुना ही नहीं है। मैंने उसको बोला, यार तू नॉडिंग जो करता रहता है तो ये बता सुनता भी है कि ऐसे नॉडिंग ही करता है? तो बोलते सर एक्चुअली मेरे को नॉडिंग की आदत पड़ी है और कुछ नहीं। ही वाज नॉट लिसनिंग एक्चुअली बट ही वाज नॉडिंग। तो मेरे को लग रहा था नहीं यार इसको सब समझ आ रहा है। 2 नंबर तो नॉडिंग के मिलते हैं, 2 नंबर स्माइलिंग के, 2 नंबर नॉडिंग के। तो ऐसा करो तुम लोग, चुपचाप बैठ जाओगे, वो बिल्कुल सीरियस मोड बना के, तब नंबर नहीं मिलेगा तुम्हें। ऐसे तुम्हें बिल्कुल अटेंटिवली सुनना है कि ऐसे लगे कि तुम उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे हो, चाहे तुम मेंटली कहीं और ही हो, लेकिन ऐसे तुम्हें देखना है उसकी तरफ कि हाँ मैं पूरी बात तेरी समझ रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। ये तुम्हें वहां पे जेस्चर पोस्चर अपने रिफ्लेक्ट करना है। ये चीजें सीखना स्टार्ट करो, ये इंटरव्यू में भी हेल्प करती हैं। इंटरव्यू में भी हेल्प करती है। जैसे इंटरव्यू ने कोई क्वेश्चन पूछा जो बहुत ही आपका मतलब ऊपर से निकल गया, तो आपने बड़े ध्यान से उसका क्वेश्चन सुनना है, थोड़ा उस तरीके से जेस्चर देने हैं कि हाँ सर क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, देन यू से सॉरी सर नो आइडिया अबाउट दिस। तो आप बड़े तरीके से उसको सॉरी सर नो आइडिया बोलोगे, लेकिन उससे पहले के जो एक्सप्रेशन है उसको अच्छे लगेंगे, किसने रिस्पेक्ट दी मेरे क्वेश्चन को। ये ट्रिक्स हैं जो आपको पास करवाते हैं। ये ट्रिक्स हैं आपके जेस्चर, पोस्चर, हाउ यू रिप्रेजेंट, हाउ यू स्पीक, दिस विल हेल्प यू टू पास इंटरव्यू आल्सो एंड जीडी आल्सो। इनको सीखो जितनी जल्दी हो सकता है, राइट। चलो देन आई थिंक आई टेक लीव ऑफ यू नाउ। जीटी रहेगा, ग्रुप टास्क रहेगा आज शाम को, रात को ग्रुप टास्क रहेगा, उसमें पार्टिसिपेट करना, राइट। वही 10:45 में सर। ओके।